Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 3.3, solve the pair of linear equations by using elimination method, chapter 3, class 10th, NCERT mathematics. Before starting with this topic, let's quickly revise whatever we have done so far. If we talk about the pair of linear equations in two variables, if you want to draw two lines in a plane, there are three different possibilities. Whether the lines will intersect at a point means in this case we are having a unique point which is common among both the lines, and this is the solution of pair of linear equations in two variables. What is called the solution of pair of linear equations in two variables? Such values of the variables which are satisfying both the equations at the very same time, that is called the solution of pair of linear equations in two variables. The second case is when we are having coincident lines. In this case we are having infinitely many common points among both the lines and we are having infinitely many solutions. And the third case is when the lines are parallel lines and we don't have any common point among both of them. In this case these lines are called parallel lines and having no solution. These two pairs of linear equations are called consistent pair of linear equations when we are having one solution or infinitely many solutions. This is called the consistent pair of linear equation, and when we don't have any solution and the lines are parallel, it is called inconsistent pair of linear equations in two variables. Now let's start with this topic, elimination method to solve the pair of linear equations. From the name it is very clear we have to eliminate something. And what we have to eliminate? We have to eliminate the variables, right? Once in this method, what is the procedure? First of all, you have to decide whether you want to eliminate the variable x or you want to eliminate the variable y. आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं है तो आप उनको सेम बनाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज आपके दोनों उन टर्म्स के साइन जिसको आप जैसे अपने x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को सेम करने के बाद उनके जो टर्म्स के साइन हैं क्या होने चाहिए? ऑपोजिट होने चाहिए. अगर तो वो पहले से ही ऑपोजिट हैं तो वेल एंड गुड, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. अगर वो ऑपोजिट नहीं है तो आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने से साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. एक बार क्विकली देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस को. ये दोनों इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट है और इन इक्वेशंस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास, लेट्स फिगर इट आउट व्हाट टाइप ऑफ लाइंस दीज आर. द फर्स्ट वन केस इज, firstly we have to decide whether we want to eliminate x or y. Okay, let's eliminate x. अगर मुझे x को eliminate करना है तो दोनों equations में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम. यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना है? 3. इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए? 3 चाहिए. बट ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें सिंपल 3 लगा दूंगी, वो तो इक्वेशन का बैलेंस ही सारा खराब कर देगा. हमें इक्वेशन में जब कोई भी चेंज लेके आना होता है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में लेके आना पड़ता है ताकि इक्वेशन का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड. तो इस तरह से इक्वेशन का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा. आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें दोनों साइड पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. तो उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस. देखो अगर हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? वी विल गेट 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 9. अब आप इस इक्वेशन को लिखो, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, राइट? क्या किया है हमने किया है 3 से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को और उसमें से सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, राइट? अब हमने माइनस क्यों किया? अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं ना. इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. और अगर आप सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेकेंड इक्वेशन की सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. अब यहाँ पे x भी एलिमिनेट हो गया और y भी एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे कितना बच गया? 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इज लेफ्ट, राइट? अब इस साइड पे हमारे पास 0 है और इस साइड पे कितना है? 7. क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती हैं तो ये हमारे पास कौन सा केस बनता है? दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड हैविंग
नो सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एज दिस इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर these lines are parallel lines and having no solution. Now let's solve this pair of linear equations in two variables. If you will observe, पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, बट ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पहले तो आप x वाली टर्म को इधर लेके आए और y वाली टर्म को उधर लेके जाए। अब आप देखो कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो कि y को एलिमिनेट करना चाहते हो। अब हमने इसमें x को एलिमिनेट किया था तो इसमें हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे हमारे पास y का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6 है, तो मतलब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से सेकेंड इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। इस साइड पे एवरी टर्म वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 2, राइट। अब इसमें सेकेंड इक्वेशन लिखें, पहले x वाली टर्म x के नीचे यहाँ पे आएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, बट यहाँ पे साइंस दोनों के सेम है तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, मतलब दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस और यहाँ पे भी माइनस। अब ये न्यू वाले जो साइंस है आप ये वाले साइंस कंसिडर करोगे, 4x माइनस 4x कट, ये भी कट, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे भी क्या बच गया 0। 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Is it mathematically correct statement? Yes. If this is a mathematically correct statement, it means this is the case of coincident lines and having infinitely many solutions. ये कौन सा केस है? This is the case of coincident lines and having infinitely many solutions, right? Now let's move on the exercise 3.3 question number first. Okay, let's start with the exercise. पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमेशा ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में मिस्टेक्स कम होती हैं। और सेकंड थिंग इज़ आपको दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। पेपर में तो कई बार स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ होता है सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो आपको तो दोनों मेथड्स क्लियर होने चाहिए। बट अब आपके पास आगे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करें, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, हर एक चैप्टर में आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनेंगी, तो हर बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करें कि आपको अगले वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ। तो सब्स्टिट्यूशन से आप खुद करेंगे, we are going to discuss with elimination method. Let's start with the first question. We are having x plus y is equal to 5 and this is 2x minus 3y is equal to 4. अब आप किस वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे है कि y के दोनों जगह पे साइंस क्या है, ऑलरेडी ऑपोजिट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे y की टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो मैं y को एलिमिनेट कर लेती हूँ, बस मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने x को एलिमिनेट करना है तो आपको दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करना है तो 3 से, अगर x को एलिमिनेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स, x वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं बाय एलिमिनेट कर रही हूँ तो इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर उसमें से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूँगी। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट विद 3, तो वी विल गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। हमेशा लूज लिखें, थोड़ा अच्छा लगता लिखा हुआ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
इनके साइंस पहले से ही ऑपोजिट थे, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि अगर साइन हमारे सेम होते तो ही हमें ऑपोजिट बनाने की ज़रूरत होती। अगर साइंस पहले से ही ऑपोजिट है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वी हैव टू ऐड बोथ दीज टू इक्वेशंस। अब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये टर्म्स सीधी कैंसिल हो जाएंगी। 3x + 2x गिव्स अस 5x एंड 15 + 4 इज 19। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज 19/5। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है, आप y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप सेकंड में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना इसीलिए ज़्यादा इजी था क्योंकि यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट नहीं थे, तो इसीलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। पुट x = 19/5 इन 1, तो ये हमारे पास आ गया 19/5 + y = 5। ये 19/5 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -5 - 19/5। वी विल गेट y = 5 5 LCM 5 5 5 = 25 - 19, तो कितना बचेगा हमारे पास, दिस इज 5। तो इट विल बी, वी विल गेट y = 6/5, राइट। We got x = 19/5 and y = 6/5. If you want to check whether these answers are correct, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों वैल्यूज़ को दोनों इक्वेशंस में डाल के चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें और y की जगह पे ये, देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन रही है, राइट। तो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। Here we are having 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अगर तो मुझे x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको सेकेंड इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बट मुझे यहाँ पे y को एलिमिनेट करना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। एक तो इसके साइंस ऑपोजिट है, तो मुझे दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 4 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हम सेकेंड इक्वेशन को अगर अकेला 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो हमें इसलिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट माइनस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइंस पहले से ही ऑपोजिट है तो हम प्लस करेंगे, +2 × सेकेंड इक्वेशन। होप इट इज क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन विल बी एज इट इज 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4x - 4y = 4। अब इनको प्लस करना है दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि y वाली जो टर्म हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट पहले से ही क्या है, ऑपोजिट साइंस के साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3x + 4y gives us 7x and here we are having 10 + 4 is 14. What is the value of x? 14/7. This is 2. x will be 2. अब आपको y निकालना है तो आप क्या करोगे, x की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। Let me substitute the value of x in first equation. We will get 3 × 2 + 4y = 10. 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 4y = 10। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 4y = 10 - 6, this is equal to 4, 4y = 4 and y will be 1. This is the value of y and this is the value of x. आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। Let's do next one. Let's do third part. Here we are having 3x - 5y - 4 = 0 and second equation is 9x = 2y + 7. सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और ये जो टर्म्स हैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 3x - 5y - 4 = 0 and second equation will be 9x - 2y - 7 = 0. अब आप डिसाइड करें कि आप कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप x एलिमिनेट करना चाहते हैं कि y।
अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो आपको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के साथ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, मतलब अगर आपको इनको ना तो 5 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड को 5 से, दोनों को करना पड़ेगा। तो x को एलिमिनेट करते हैं। x को एलिमिनेट करना ज़्यादा सिंपल है। वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि साइंस दोनों के सेम है ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 9x माइनस 5 3 15y माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो नीचे वाली टर्म जो इक्वेशन है उसकी सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस, दिस इज प्लस, राइट, ये कट हो जाएगा। माइनस 15x प्लस 2y इट गिव्स अस माइनस 13y, माइनस वाली टर्म बड़ी है ना, यहाँ पे 2 के साथ पॉजिटिव साइन है। माइनस 12 प्लस 7 तो कितना आएगा ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास पहले तो 5 उधर ट्रांसपोज होगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 5 इधर माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस 13y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय माइनस 13। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो हम उसको कहाँ लगाते हैं, न्यूमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज 3x माइनस माइनस प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x विल रिमेन एज इट इज। आप इन दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनका एलसीएम ले लो, इट विल बी 13। 25 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे हमारे पास है 3x, ये दोनों के साथ 25 माइनस 52 तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस 7 and this is 12 minus 5 is 7, this is 4 minus 2 is 27 divided by 13 is equal to 0। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, this is 3x minus इज इक्वल टू 27 बाई 13 और ये 3 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 27 13 मल्टीप्लाई बाय 3 तो x विल बी 27 बाय 39। बट चेक करिए वैल्यूज, यहाँ पे 3 कॉमन था तो हम इसको कट भी कर सकते थे। 3 1 3 3 9 तो आंसर विल बी दिस इज 9 बाय 13, x इज 9 बाय 13 और y कितना था हमारा माइनस, y is minus 5 by 13. These are the required solution, right? Now let's do the next part. In this fourth part we are having two equations where we are having denominators, right? First of all we have to take the LCM and resolve these denominators. यहाँ पे LCM कितना आएगा, 3 2 6, ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर, यहाँ ये कितना बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ ट्रांसपोज 6 यू विल गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ लेट्स टेक सेकेंड इक्वेशन, एलसीएम विल बी 3, यहाँ पे x के नीचे 1 है, अगेन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम। दिस इज 3x minus y is equal to 3. Transpose this 3 on another side, you will get 3x minus y is equal to 9. This is our second equation. Now here you can see, here we are having coefficient of x is 3. Here we are also having coefficient of x of is 3. अब हमें
बेटर है कि हम x को एलिमिनेट करें क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम है, हमें किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, राइट, विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो साइन ऑपोजिट बनेंगे, तो ये कैंसिल, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 4y प्लस y दैट इज 5y and this is minus, it gives us minus 3. What is the value of y? y will be minus 3 by 5. ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए, सेकेंड में पुट करना ज़्यादा इजी है। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये बनी थी सेकेंड इक्वेशन। तो आप इसमें पुट करें y की वैल्यू सीधी, put the value of y here and find out the value of x, right? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, we will get 3x माइनस, ये साइन पहले भी माइनस का, y की वैल्यू भी माइनस में ही है तो ध्यान रखना है साइन का, माइनस इज इक्वल टू 9, दिस इज 3x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे प्लस बन जाएगा और उस साइड पे जाके अगेन माइनस, दिस इज 3x इज इक्वल टू, एलसीएम विल बी 5 9 जा, LCM will be 5, तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 45 माइनस 3, तो what you will get 3x is equal to 43 by 5, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x will be 43 by 15। These are the values of x and y। एक बार चेक करिए आंसर्स। हमने यहाँ पे एक पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन में -6 था, तो यहाँ पे पहले -6 है, और अगर आप इधर -6 लगाएंगे तो यू विल गेट हेयर -25, राइट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा -25/5, तो वैल्यू ऑफ y विल बी -5, नॉट द प्रीवियस वन। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है तो ये तो सारा पार्ट गलत हो गया है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू 6 -6 प्लस 20, तो ये कितना आंसर आएगा, दिस इज नॉट 25, दिस इज 15। क्या हो गया भाई, बहुत गड़बड़ कर दी है ना। दिस इज -3, यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास -12 आएगा, और ये -12 इधर जाके क्या हो जाएगा +12, तो जो 3x है वो हमारे पास आ जाएगा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2, x इज 2, y इज -3। आप एक बार खुद भी चेक कर लीजिए, मिस्टेक्स होना भी अच्छी होती हैं, है ना, क्योंकि हम अगली बार थोड़ा और माइंडफुल होके कॉन्शियस होके काम करते हैं, तो इट इज़ ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। हियर वी आर हैविंग इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। If it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? अब हमें जब भी, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, जब भी हमें फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने को आते हैं तो हम ऐसे नहीं करते लेट द फ्रैक्शन बी x, नो, कैसे लेट करते हैं, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, राइट। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, लेट द न्यूमिनेटर बी x and let the denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, और इक्वेशंस को जब भी हम
नंबर न्यूमेरिकल जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट होती है, उससे जब भी हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं, तो एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, आपने कोई भी स्टेटमेंट हाफ नहीं पढ़ना है, फुल स्टॉप तक पूरा पढ़ने के बाद ही आपने वहाँ से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। मीन्स अगर हम इसमें करते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन को प्रॉपरली फ्रेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर इस साइड पे जाके ट्रांसपोज हो जाएगा। x plus 1 is equal to y minus 1. Write it in the standard form. You will get x plus 1 minus y plus 1 is equal to 0. This is x minus y plus 2 is equal to 0 is our first equation. Correct? Now let's frame your second equation. Second equation is if it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. हमारी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 1/2 बन जाएगी। कब? जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे? 1। इसका मतलब न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज एंड वी हैव टू ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर ओनली, राइट? नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज 2x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज y प्लस 1। तो इक्वेशन विल बी 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो y को एलिमिनेट करना ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, साइन दोनों के साथ सेम है, तो हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। 1 माइनस 2, तो 1 कितना है हमारे पास? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड कितना आएगा? 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। x माइनस 2x, दिस इज माइनस x, 2 माइनस 1, दिस इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? x विल बी माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज x, ये -1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x विल बी 1। अगर x 1 है तो y कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चाहे इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, इसी में पुट कर लो। अगर आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा? दिस विल बी 1 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y विल बी 3, पॉजिटिव 3, क्योंकि ये 3 इधर जाके माइनस होगा ना, इस तरह से आएगा ना हमारे पास, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन? कैसे लिखोगे आंसर? द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज व्हाट इज द न्यूमिनेटर? x, दिस इज 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? नाउ लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें एज को फाइंड आउट करना है। और जब भी हमारे पास एज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस के आते हैं तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। जब हमारे पास एज के क्वेश्चंस आते हैं तो हम प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, देन वी आर हैविंग फुल स्टॉप। 10 years, this is 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? आपने बताना है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, तो हम यही लेट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x and present age of Sonu is equal to y. According to question,
क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट केस में वो बात कर रहे हैं 5 years एगो। बेटा एगो का मतलब पीछे होता है, 5 years पहले। देखो यहाँ पे वॉज भी है ना, यहाँ से भी आपको क्लैरिटी हो जाती है। यहाँ पे 10 years लेटर और यहाँ पे विल बी है, मतलब और 5 साल बाद आगे। और जब भी एज की बात होती है, अगर आपने 5 साल पहले जाना है तो दोनों की एज में से 5 साल आपने क्या कर देने हैं, माइनस। और अगर आपने 10 years लेटर मतलब 10 years आगे जाना है तो अपने दोनों की एज में 10 years ऐड कर देने हैं, राइट। सिर्फ एक पर्सन की एज में ऐड नहीं होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर 3 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों की एज जो है वो 5 years छोटी हो जाएगी ना। और अगर 10 years बाद की बात करेंगे तो दोनों की एज 10 years बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करते हैं 5 years एगो। मतलब अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो नूरी की एज कितनी होगी, x-5, और सोनू की एज y-5। ये तो पता ही था, राइट। अब उन्होंने बोला है 5 years एगो नूरी वॉज की जगह पे क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू नूरी, ये नूरी की एज है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू थ्राइस का क्या मतलब होता है, 3 times एज ओल्ड एज सोनू। जितना उस टाइम पे सोनू था, नूरी की एज उसकी क्या थी, 3 times थी, राइट। 3 times का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा x-5 3y डिस्ट्रीब्यूटिव 3y-15। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टर्म से तो मल्टीप्लाई कर देते, सेकंड से करते ही नहीं है। तो दिस इज x-3y-5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x-3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स फ्रेम योर सेकेंड इक्वेशन। 10 years, ये कौन सा केस था, 5 years एगो वाला, कौन सा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केस फॉर 10 years later, आज से 10 साल बाद। तो नूरी की एज x+10 और सोनू की एज y+10। ये तो पता ही था कि दोनों 10-10 साल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब कंपैरिजन किस तरह से दिया उन्होंने, नूरी विल बी, जहाँ पे विल बी है, वॉज है, वी गेट है, वी ऑब्टेन है, वहाँ पे इज इक्वल टू आता है। तो विल बी से पहले सिर्फ नूरी का नाम है, तो नूरी विल बी ट्वाइस मतलब 2 times एज ओल्ड एज सोनू। जितनी सोनू की एज होगी, नूरी की एज उसकी कितनी होगी, 2 times। तो दिस इज x+10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x-2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x-2y 10 minus 20 that is minus 10 is equal to 0. This is our second equation. Now solve these two equations. अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो आप यहाँ से x एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि दोनों में हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर लो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, दिस इज ऑल अप टू यू। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखी है तो मैं इसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देती हूँ, -3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चेंज देयर साइंस, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है, अगर ऑपोजिट बनेंगे तो एलिमिनेट होंगे। ये कट हो जाएगा, -2y प्लस 3y इट इज पॉजिटिव बाय 10 माइनस 20 दिस इज -30 इज इक्वल टू 0। जो अभी हमने साइन लगाया ना, बाद में हम वही कंसिडर करते हैं, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, +30। y किसकी एज थी, y सोनू की एज थी। अब हम नूरी की एज फाइंड आउट करते हैं। नूरी की एज फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें। फर्स्ट में पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू 30 इन 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी x -3 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x विल बी माइनस दिस इज x विल बी 70। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 70 ईयर्स। अगेन अनदर मिस्टेक, आज तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई है ना। 15 माइनस 5 इट इज़ +10। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास +10 आएगा और यहाँ पे हमारे पास -20 आएगा, और जो हमारे पास सोनू की एज है वो 20 ईयर्स पर होगी। अब ये जो 20 y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो दिस इज 20, 3 2 ज़ा 6, दिस इज ऑल्सो 10 फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 10 था। तो 60 माइनस दिस इज -50 एंड दिस इज अगेन
50. What is the present age of Noori? Answer, how you will write the answer? Present age of, answer will be, present age of Noori is 50 years and present age of Sonu is 20 years, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक्चुअली में ना जब एक बार मिस्टेक होना शुरू होती है ना फिर होती रहती है ना, अजीब है. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. एक डिजिट है उसके दोनों, एक नंबर है उसके दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the number. उन्होंने बोला है पहले पार्ट में तो यहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप है. उन्होंने बोला है 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 9 है. Also 9 टाइम दिस नंबर. अगर आप इस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स करते हैं then also 9 टाइम दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the number. Order of the number means reversing the order of the digit. Order reverse करने का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास 63 है तो we have to write it as 36, right? मतलब हमने नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना. इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, पहले बात तो ये यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ फाइंड द नंबर. जब भी हमारे पास इस तरह से 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो हम यहाँ पे नंबर लेट नहीं करते. हम यहाँ पे क्या लेट करते हैं? लेट द डिजिट ऑन द वंस प्लेस इज दिस, लेट द डिजिट ऑन द यूनिट प्लेस इज x एंड द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस इज y. फिर वहाँ से हम अपना ओरिजिनल नंबर फ्रेम करते हैं. फिर हम नंबर फ्रेम करते हैं आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमने ये नहीं लेट करना है कि लेट द नंबर इज, तो हम क्या लेट करेंगे? लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस इज x. यूनिट प्लेस कौन सा होता है? वंस प्लेस. लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस इज y. ये तो हमारे पास आ गए डिजिट्स यूनिट्स प्लेस और x प्लेस, टेंस प्लेस पे. आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई नंबर है 36, राइट? अगर हम इसके यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो 6 है और टेंस प्लेस पे 3 है, तो नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? ये नंबर कैसे बना होगा? व्हेन वी हैव मल्टीप्लाइड 6 by 1 प्लस 3 by 10. टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना और वंस वाले को 1 से. दिस इज 30 प्लस 6. आंसर विल बी 36, राइट? इसी तरह से अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर होता है 365, तो वंस वाले को 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100. बॉड मास लगाएंगे तो यहाँ पे पहले 300 प्लस 60 प्लस 5, तो नंबर विल बी 365. तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमने डिजिट लिया यूनिट प्लेस पे, ये हमारा यूनिट प्लेस है और ये हमारा कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस, राइट? यूनिट प्लेस पे हमने डिजिट लिया था x और टेंस प्लेस पे हमने डिजिट लिया था y. अगर हम इसी तरह से अपना नंबर बनाएं तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर विल बी, टेंस प्लेस वाले को अपने 10 से मल्टीप्लाई करना है 10 बाय, प्लस यूनिट प्लेस वाले को अपने 1 से मल्टीप्लाई करना है. ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर बनेगा. फिर उसके बाद हम इसके डिजिट्स को क्या कर देंगे? रिवर्स. रिवर्स करने का मतलब है अब हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट हो जाएगा? यूनिट प्लेस पे हमारे पास y हो जाएगा और टेंस प्लेस पे हमारे पास x हो जाएगा. तो न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर विल बी 10x प्लस y. अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया गया है, चेक करते हैं. दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज आवर न्यू नंबर. ये दोनों नंबर्स आप पहले ही साइड पे बना लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी, दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 9. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहे थे,
यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन डिजिट से जो नंबर बने उनकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों में अब दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ से फुल स्टॉप खत्म हो गया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इसकी जगह पे इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, और यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनी, द 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है हम उसका कितना लेंगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मीन्स 9 मल्टीप्लाई द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। तो क्या बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस y, राइट। अब ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 9, इक्वेशन बनेगी 90x प्लस 9x, थोड़ा ध्यान से करते हैं, 20x प्लस 2y। सारी इक्वेशन को इस साइड पे ले जाइए, देखो फिर से गलती, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास, या फिर उस साइड पे ले जाएं, 20x प्लस 2y, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव था, बड़ा है, तो माइनस 9x माइनस 90y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपनी इक्वेशन बनाओ, 20x माइनस 9x इट गिव्स अस 11। इक्वेशन कितनी बनेगी, 20x माइनस 9x इज 11x, 2y माइनस 90y दैट इज माइनस 88y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ रहा है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 उस साइड पे जाके जब कॉमन निकालेंगे तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड आउट योर ओरिजिनल नंबर। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लें। हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे x के कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करने हैं, ये कट हो जाएगा। माइनस 8y माइनस y इट गिव्स अस माइनस 9y माइनस 9, ये दोनों कट जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 9/9, दिस इज 1, राइट। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई है, आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकालें। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पुट y इज इक्वल टू 1, 1 इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इट इज 8। तो व्हाट इज आवर ओरिजिनल नंबर, x कौन से प्लेस पे था हमारे पास, यूनिट प्लेस पे, और y टेंस प्लेस पे। तो ओरिजिनल नंबर विल बी, द रिक्वायर्ड नंबर इज 18, इट इज़ नॉट 81, राइट, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट लिया था, x, और टेंस प्लेस पे y। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना, हमारा नंबर कितना बनेगा 18 बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में जाती है, उसको कितने पैसे निकलवाने हैं, 2000 रुपीज़। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only। उसने क्या बोला कि मुझे सिर्फ 50 के नोट्स चाहिए, या फिर सिर्फ 100 के, मुझे 1000 के, या मुझे 500 के नोट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन कौन से नोट्स चाहिए, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के, राइट। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कैशियर ने कितने नोट दिए टोटल, 25, उसमें से कुछ 50 रुपीज़ के थे, कुछ 100 रुपीज़ के थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। आपने बताना है कि उसको 50 रुपीज़ के कैशियर ने कितने नोट दिए होंगे और 100 रुपीज़ के कितने नोट दिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हम इसमें लेट क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x एंड दैट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 50 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं तो आपके पास अमाउंट कितना बनेगा, 250। और अगर उसके पास 50 रुपीज़ के x नोट हैं तो उसके पास अमाउंट कितना बनेगा, 50 मल्टीप्लाई बाय x।
सिमिलरली 100 रुपीज़ का अगर एक नोट है तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 100 रुपीज़ की अगर वाई नोट है तो 100 मल्टीप्लाई बाय वाई। इस तरह से हमारे पास अमाउंट बनता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस कैसे बनेगी। फर्स्ट इज द कैशियर गेव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके पास कैशियर ने उसको टोटल कितने पैसे दिए, 25 नोट्स दिए उसको टोटल, राइट। मतलब कुछ 50 के कुछ 100 के, मतलब उसने x 50 के नोट्स थे और y 100 के। तो हमारे पास x प्लस y दोनों का टोटल कितना बन गया, 25 रुपीज़। ये तो नंबर ऑफ नोट्स की इक्वेशन है। अब उसके बाद उसने पैसे कितने निकलवाने थे, 2000। अब हम अमाउंट की इक्वेशन बनाएंगे। ये किसकी है, नंबर ऑफ नोट्स की इक्वेशन। अब किसकी इक्वेशन बनाएंगे, अमाउंट की। उसने कितने पैसे निकलवाए थे, 2000। मतलब अगर उसको 50 रुपीज़ के उसके पास x नोट्स थे तो 50 रुपीज़ से उसकी अमाउंट कितनी बनी होगी, 50x। और 100 रुपीज़ से उसकी अमाउंट बनी होगी 100/, तो हमारे पास इस तरह से टोटल अमाउंट कितना बना, 2000। अगर आप इसमें से देखें तो हमारे पास 50 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू डिवाइड 2000 बाय 50, दिस इज 5 4 दिस इज 40। चेक कर लो भाई अभी गलती ना हो कुछ, है ना। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और x और y की वैल्यू निकालें। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो बेटर टू एलिमिनेट x। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट देम, ये कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 2y इज माइनस y। 25 माइनस 40 कितना बचेगा भाई, 25 माइनस 40 इज 15, माइनस 15 है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -15। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, x y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। x कितना आ गया, 25 माइनस 15, दिस इज 25 माइनस 15 इज 10। तो x क्या था हमारे पास, 50 रुपीज़ के नोट थे, और y क्या था हमारे पास, 100 रुपीज़ के नोट थे। मतलब कैशियर ने उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए। देयरफॉर आंसर कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स विल बी 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स विल बी 15। अगर 50 रुपीज़ के उसके पास 10 नोट हैं तो उसके पास अमाउंट कितना बनेगा, 500। और अगर 100 रुपीज़ के 15 नोट हैं तो उसके पास अमाउंट बनेगा 1500। और टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, 2000 अमाउंट बन जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर चेक भी कर सकते हैं, और हमारे पास टोटल नोट बनेंगे 25। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट। नाउ लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन क्विकली। ओके, लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। अब कोई भी बच्चा कितने भी दिनों के लिए बुक लेता है, फर्स्ट 3 days के लिए बुक के चार्जेस क्या हैं, फिक्स्ड है, राइट। मतलब आप चाहे उस बुक को 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, आपको एक ही फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करनी ही पड़ेगी। दैट इज़ द फिक्स्ड चार्जेस, राइट। 3 दिन के बाद अगर आप 4th डे 5th डे भी बुक रखते हो तो आपको पर डे के हिसाब से चार्जेस पड़ेंगे, बट वो चार्जेस कब पड़ रहे हैं, 3 दिन के बाद। फर्स्ट 3 days के लिए अमाउंट क्या है, फिक्स्ड है, राइट। अगर किसी ने 5 days के लिए बुक रखी है तो फर्स्ट 3 days की अमाउंट तो फिक्स थी, उसके बाद जो बाकी के 2 दिन बचे हैं उसके लिए उसको अमाउंट पर डे के हिसाब से पे करनी है, राइट। एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सारिका पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। एक गर्ल है, उसने बुक कितने डेज के लिए रखी है, 7 days के लिए, और उसने कितना अमाउंट पे किया है, 27। अगर उसने 7 days के लिए बुक रखी है तो मतलब फर्स्ट 3 days के लिए तो उसने फिक्स्ड अमाउंट पे किया, और बाकी जो 4 दिन बचे हैं उसके लिए उसने पर डे के हिसाब से अमाउंट पे किया, राइट। वाइल द सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days।
अब दूसरी गर्ल है, उसने बुक कितने डेज के लिए रखी है? 21 डेज के लिए. फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर. आपने क्या बताना है कि फिक्स्ड चार्जेस जो 3 डेज के थे वो कितने थे, और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आफ्टर द फर्स्ट 3 डेज वो कितने थे. तो हम यही लेट करेंगे, लेट चार्जेस बी एक्स and let charge for each extra day after 3 days, right? After first 3 days वो कितने हैं? 1. अब according to question frame your equations. तो फर्स्ट गर्ल है, शी kept the book for how many days? For 7 days. and how much amount she paid? 27. मतलब पहले तो उसने x रुपीज़ दिए, फिक्स चार्जेस, 7 डेज के लिए बुक रखी है. x कितने डेज के लिए थे? दिस इज फॉर 3 डेज, राइट? दिस इज फॉर 3 डेज. तो ये जो y रुपीज़ उसने पे करने हैं वो किस हिसाब से करेगी? बाकी के बचे हुए 4 दिन के लिए. फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसने x रुपीज़ पे कर दिए. अब कितने दिन और बच गए? 7 डेज है ना टोटल, तो कितने दिन और बच गए? 4 डेज. तो 4 डेज के लिए वो पर डे के हिसाब से y रुपीज़ पे करेगी. 4y इज इक्वल टू 27. नाउ द सेकेंड गर्ल, शी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज. अब जो दूसरी गर्ल है उसने बुक कितने डेज के लिए रखी है? 5 डेज के लिए. 3 डेज की चार्जेस तो फिक्स थे. उसके बाद ऊपर कितने दिन हुए? 2 दिन. और 2 दिन में वो पर डे के हिसाब से कितने रुपीज़ पे करेगी? y. दैट इज 2y इज इक्वल टू 21. राइट. नाउ सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस. x पहले से ही सेम कोफिशिएंट्स हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y. 27 माइनस 21 दिस इज 6, ओनली 6 है ना. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3. मतलब पर डे के फर्स्ट डे के बाद जितने भी दिन वो किताब बुक अपने पास रख रहे हैं उसके लिए पर डे के हिसाब से उसको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं? 3 रुपीज़. हाउ वी कैन फाइंड आउट द फिक्स्ड चार्जेस x? यू कैन टेक एनी इक्वेशन x प्लस 4y. दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27. x प्लस 12 is equal to 27. x is equal to 27 minus 12. तो x will be this is कितने बन गए भाई? 8 और 7 15 रुपीज़. Let me check. How much? 15 rupees. These are the charges fixed for first 3 days and आफ्टर 3 डेज अगर कोई पर्सन बुक रखता है तो उसको पर डे के हिसाब से 3 रुपीज़ पे करने हैं, राइट. और ये जो 15 रुपीज़ है ये पर डे के नहीं है, ये 3 दिन के इकट्ठे चार्जेस हैं, राइट. फर्स्ट 3 डेज के चार्जेस हैं 15 रुपीज़, राइट. तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस? फिक्स्ड चार्जेस ₹15 फॉर 3 डेज एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आफ्टर द फर्स्ट 3 डेज दैट इज ₹3. This is our answer. Hope you understand each and every question. हो सकता आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करके चेक कर सकते हैं. वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत इजीली समझ भी आ जाएंगे. 1-2 क्वेश्चंस हैं, जैसे नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने डिजिट्स को रिवर्स किया था, उसको थोड़ा सा ध्यान में करना है. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है. बाकी तो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं. होप जो बातें आपको बताई गई हैं आप उनका ध्यान रखेंगे. और लेट्स ओके, गुड बाय देन, हैव अ नाइस डे.